Colonel. A very good morning to everyone. Welcome Senior Civil Officer Sri Rajendra Pawar, IDES 2000 batch, Joint Director, Defence Estates, Pune. Our keynote speaker for today is a sports enthusiast, member of the Defence Estates Services, is a versatile personality and highly experienced senior civil officer. He is a law graduate and MSc in agriculture. He has served in the Great Indian Army as Chief Executive Officer in many cantonment boards, Defense Estates Officer all over India, including the states from the Northeast. He has also served as Commissioner for Sales Tax. We are all looking forward to your talk today. Mental health is something we can, keep talking about, and it's never enough. Welcome. Over to you, sir. Floor is yours, Thank you. brother. Go ahead. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much. Good morning. Good morning to all Rotarians, the dignitaries present over here. I'm so thankful to get this opportunity to talk to you in this morning. I have been knowing Colonel Mishra for long, and he has been an inspiration to all the officers and civil servants who are here in Pune. He's been the chairman and founder member of our civil services group, which is a registered trust in Pune. Thank you, sir. Thank you so much. अच्छा कल परसों मुझे एक last week when Colonel Mishra called me and said that I'll be delivering a lecture, and I was asked to choose the subject. He said preferably it should be related to the job we are doing. So my job is pertaining to defense lands and cantonments. I thought it would be too boring. So then I pondered upon so many subjects, and then I thought, okay, let us talk about the subject mental health from a different perspective, not from the clinical point of view, but slightly spiritual or say individual wellness point of view. So I'll start slightly theoretically, and then we'll go some practical point of view and some spiritual discussions. Basically, this is what I have learned through the experiences. When we go through the different life experiences, we encounter with different life situations. But today, mental health is a buzzword because in olden times, people didn't have the time to think of this subject independently, separately, because everybody was busy in their life struggle of the life. But now, since because of different problems like say urbanization and all these things, this mental health has got a lot of attention. I had a lot of dilemma choosing this subject and how to ponder upon it. But what I'll do, I'll switch on between the text, my this thing, and language also. I'll prefer sometime in English and sometime in Hindi. Will it be okay, sir? Yeah. Please go ahead. That's great. Yeah. Thank you, sir. What is mental health? Mental health is a state of a well-being. Basically, it's balancing between the struggle of the life, peace and stress, wellness and happiness. Generally, when we talk of mental health, we always think of some psychiatrist treating some person mentally not very well, and we think it's like a psychological disorder. But it's not like that, because over the period, the perspective has changed, and we are looking the mental health as a necessary thing in our life. Especially we have realized during this corona situation, life has changed and taken its turn around. So a lot of mental imbalance has taken place, and trauma has increased in this corona.
कोरोना सिचुएशन. अभी आज की सिचुएशन में what if you see 1/4, like say almost 1/4 of the people are suffering from this some kind of stress or trauma, though sometimes we realize it directly or indirectly. पता नहीं होता है बहुत बार कि हम डिप्रेशन से पास हो रहे हैं. We don't acknowledge it basically. We don't acknowledge it independently. आज की सिचुएशन में almost 25% of the people in developed world are going through this stress and day-to-day trauma. But unless we acknowledge it, we'll not be able to treat it. It ultimately affects our day-to-day living, relationships, and physical health as well. Physical health is specifically related to our mental health. Mental health is ability to enjoy life, which means reaching balance between life activities, responsibilities, and efforts to achieve psychological resilience. Day-to-day, positive, negative, happiness, and conditions such as stress, maybe the long duration stress or situation-wise stress that we don't realize over the in a normal day-to-day situation. Depression and anxiety, we can call these are the effects of mental health, and it disrupts the routine life of a person. What could be the factors which affect the mental health? Those can be biological to some extent, but most of them are lifetime choices, lifestyle choices, basically. Other extraneous factors like financial circumstances, your occupation, your peer group, and personal habits would also contribute to your mental health. In the developing countries, the main factor affecting the mental health is weak economic status. What are the common types of mental illness? Say like anxiety, mood, and which may, in some cases, result in the ailments like schizophrenia, etc. It also causes restlessness, fatigue, tense muscles, interrupted sleep, panic, and may trigger such negative type of emotions. You might have heard of different types of ailments, psychosomatic ailments like OCD, obsessive compulsive disorder, which basically is a extended type of depression, habitual depression, and it results in social withdrawal, which individual tries to avoid the joy. स्टोरी है. अच्छा. एक बड़े सेठ की डेथ हो जाती है. तो 20 का आधा दे दिया, 10 लड़के को फ्री किया. 1/4 5 दिया. Hello, there was some disturbance, I think. Colonel Mishra, I am not able to hear. There was some disturbance. I have muted all, so you go ahead. Yes, yeah. So, what needs to done to deal with the to maintain this mental health? The basic way is to self-help and help of others. So, just before the talk, we were talking about the trust, connecting trust. So, what is there into in? They are into the help of others through the self-help. It involves change in the lifestyle. When some people actually turn towards different things like alcohol and other sedatives to deal with the mental health, which is not a good thing. But what I'll suggest, out of my experience actually, जो मैंने देखा है basically, self-help through spiritual
attainment, छोटा छोटा spiritual things ये करके that we can deal with. Mental health awareness, then we can think of from the Indian spiritual way perspective. उसके अनेक मार्ग हो सकते हैं, जैसे हम मैं पर्सनली आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का श्री श्री रविशंकर जी का जो मार्ग है उसको आई फॉलो. It's a spiritual organization, NGO, which teaches us meditation through breathing techniques and through Sudarshan Kriya and other tools which will help you calm your mind. There are other ways also, say like Osho, which is also a secular type of thing, non-spiritual, Vipassana, Sadguru, Sankirtan, मंत्र ध्यान, मंत्रोच्चार, अनेक विधि है उसके. देन नामस्मरण इज वन ऑफ द थिंग. ब्रह्म कुमारीज जो आप वीडियोस देखते होंगे ऑन यूट्यूब, जैसे सिस्टर शिवानी के बहुत सारी वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे. सो दैट actually will improve the mental health of the individual. I'll just go through some of the tenets of the art of living. I will not actually propagate any path actually, but this is out of my experiences. I'll be telling you. So what are the basic principles of art of living? So when there are ups and downs in life, pleasant things happen, unpleasant things happen. The first principle is, in all this situation, keep the balance of the mind. Often what happens when things go our way, we are so happy. But when things don't go in our as we think of, we get depressed and angry. To maintain this equanimity, it is the first principle. The next principle is accept. Basic, अपने पूरे लाइफ में हम generally we don't accept things. Things is what जिसे हम हिंदी में स्वीकृति कहते हैं लाइफ के प्रति, लाइफ की सिचुएशन के प्रति और इंडिविजुअल्स के प्रति. जैसे पर्सन्स एंड सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी एक्सेप्ट द थिंग, द सिचुएशन और अ पर्सन, इट रिलीजेस द एनर्जी व्हिच एक्चुअली हेल्प्स अस डीलिंग विद द गेटिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अगर हम हर चीज को रेजिस्ट करते रहे, जैसे मेंटली हम बहुत बार मेंटली हर चीज को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट टू एग्जिस्टेंस, जो भी होते रहता है लाइफ में अपने, उसको भी वी आर हैबिचुअल ऑफ रेजिस्टिंग इट, कि इसको अंदर से हमारा नकार होता है उस चीज को. जब तक हम उस हर चीज को, इंडिविजुअल को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी जो अंदर की जो एनर्जी है that is not released, and because of that we are not able to find the solution to that life situation. So we should accept the people and situation as it is. बहुत बार हम क्या करते हैं, सिचुएशन को लाइफ से समझ के चलते हैं. सिचुएशन इज a smallest part of the time and life. हम सिचुएशन को इतना बड़ा बना देते हैं कि it's like a life. So situation and small incidences in the life are not basically a life. So we should treat them there itself by accepting those first, and after that finding solution on that life situation. May it be a problem. The third principle the art of living propagates is, don't be a football of others' opinions. Generally हम क्या करते हैं कि our life is always driven, we are always reactionary in life. हम लाइफ को रिएक्शन में जीते हैं बहुत बारी. समथिंग हैपेंस, वी रिएक्ट टू दैट. समथिंग हैपेंस, वी रिएक्ट टू दैट. देन वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट व्हाट other people will think. So don't be football of the others' opinions, because that is not going to help. You are an individual, a complete in yourself. जो हमारे स्पिरिचुअल इसमें भी बोला जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब we are complete, absolute. So हम जो कहते हैं, तो we are absolute individually, and every life situation is complete situation. हम generally हमारी habit क्या होती है कि we always
हर सिचुएशन में व्हाट इज लैकिंग दैट वी पॉन्डर अपॉन ऑलवेज। तो वो जो हमारा देखने का नजरिया है कि हम पूर्ण की तरफ नहीं देखते हैं, अपूर्णता क्या है उस सिचुएशन में, इस इंडिविजुअल में, उस टाइम के उस घड़ी में क्या अपूर्णता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट। तो इसलिए पूर्ण के ऊपर ध्यान दे, बिकॉज एवरीथिंग इज कंप्लीट, वी आर कंप्लीट बेसिकली। इसलिए दूसरे का जो ओपिनियन है अपने प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे हम, because nobody has the time to think of you, because you only are thinking about the other. The next point is don't see the intention behind others' mistakes. It's very important. Inside every culprit there is a victim crying for help. Recognize that. तो बेसिकली आज की सिचुएशन में क्या है, हम जनरली किसी भी चीज में इंटेंशन ढूंढना शुरू करते हैं। वी डोंट लेट द सिचुएशन एज इट इज। एंड लास्टली लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम बेसिकली वी ऑलवेज हमारा जो लाइफ का सिचुएशन है, हम ये जो है हैप्पीनेस या है कोई भी फीलिंग्स जो है, दोज आर ड्रिवन बाय आवर थॉट्स, जो हम जनरली पॉन्डर करते हैं पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट तो इज डेथ बेसिकली। ओशो हैज आल्सो सेड कि पास्ट जो होता है दैट इज गॉन। हम ज्यादातर पीछे वाली चीजों में ज्यादा पॉन्डर कर रहे होते हैं लाइफ में, और या फिर आगे वाले बहुत इसमें, और प्रेजेंट पे इस क्षण में हम नहीं रहते हैं। इसलिए ओशो हो या फिर ब्रह्म कुमारी हो, वो सभी इसमें एडवोकेट करते हैं कि आप प्रेजेंट वाली सिचुएशन में रहे। एक मैंने बुक अभी सभी लोगों को रेफर करता हूँ, ए पावर ऑफ नाउ, विच इज रिटन बाय स्पिरिचुअल टीचर एखार्ट टोले। वो कहता है कि सारा लाइफ का जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स है, मोस्टली दोज आर माइंड का एक रिजल्टेंट है बेसिकली, बिकॉज माइंड इज such a thing, it's like a monkey. Mind is like a monkey. अगर उसको आप देखना ठीक से शुरू करो, उसको ट्रेन करना शुरू करो। लोग बहुत बारी कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करो। माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता है, माइंड को ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली। तो सभी ज्यादातर अनहैप्पीनेस की या नेगेटिव फीलिंग्स की जड़ है कि हम माइंड को भी अलाउ इट टू पॉन्डर इन द पास्ट और far ahead future, जो अपने हाथ में है नहीं, because past is gone and future is far distant. Whatever is left is the now only. तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने पढ़ा हो that is good. There is a book called Power of Now, which is written by Eckhart Tolle, who is a spiritual teacher. उसका ये कहना है कि माइंड को आप जैसे है वैसे देखो, जैसे सिचुएशन को। इट्स कॉल्ड साक्षी भाव, जो आप त्रस्त भाव से देखते हो किसी भी सिचुएशन को, इंडिविजुअल को, प्रॉब्लम को। आफ्टर यू एक्नॉलेज इट, मतलब स्वीकृति करने के बाद आप माइंड की तरफ देख, सिर्फ स्थायी साक्षी भाव से देखते रहो। और जो जनरली माइंड का अपना एक हैबिट होता है टू ड्वेल इनटू पास्ट एंड प्रेजेंट। ओशो ने कहा है, ओशो का एक अच्छी बुक है बेसिकली, मृत्यु की कला। तो व्हाट ही टेल्स, जो पास्ट है इट्स डेथ, चेंज पास्ट जो गया है, पर हम पास्ट इज डेथ कैन नॉट चेंज। गाइडेंस के तौर पे देख सकते हैं कि ये वैसा नहीं करना चाहिए था। एंड ऑल पेन्स इज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट करते हैं सिचुएशन को मेंटली कि ये वैसा नहीं है, ये वैसा होना चाहिए था। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड एंड समथिंग वुड बी लाइक ए हैप्पीनेस। मेरा हैप्पीनेस उसी में है,
उसी में There is network problem, I believe, ऐसा Rajendra. जब हम सोचते हैं that happiness is वही पे प्रॉब्लम है, जैसे बुद्ध भी कहते सिचुएशन को। जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम जी लग सर। रही है, आपकी आवाज बड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा बीच बीच में रुक रहा है। सो यू कैन डू कि आप वीडियो बंद करके ऑडियो के ऊपर बोल सकते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हेलो। ओके या यस कैन यू मी? या प्लीज गो हेलो अहेड। या नाउ इट्स इज इट क्लियर। ओके नाउ? इट्स ओके नाउ, इट्स ओके, प्लीज गो अहेड। या ओके 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 ओके। मोड में होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, रिजेक्शन के मोड में होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते सब चीजों को। दैट इज व्हिच कॉजेस द स्प्रेड। सो जनरली एक तो माइंड का पूरा खेल है। वी आर व्हाटएवर फीलिंग्स आर दोस आर वर्चुअल वंस। हैप्पीनेस इज वर्चुअल वन, वर्चुअल है बेसिकली, क्योंकि हम उसको जज करते रहते हैं हर लाइफ में। हर 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 सिचुएशन को, लाइफ सिचुएशन को हम जज करते हैं, जजमेंटल होते हैं, इसलिए हम ज्यादा सुख या दुख की सोचते रहते हैं। खास करके जो मिडिल क्लास तबका है, वो जनरली ही इज ऑलवेज जजमेंटल कि ये सिचुएशन को हम जज करते हैं। अगर हम देखें कि पशु पक्षी है, पेड़ है, वो जिस सिचुएशन में है उसी में रहते हैं। जैसे कुत्ता है उसी में है, he will not he doesn't think what is happiness and what is unhappiness, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका जजमेंट हम हर सिचुएशन में करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे दुख अपने इसमें पैदा होते हैं। मैं अभी जो बोल रहा था कि माइंड बाहर से त्रयस्थ भाव से उस साक्षी भाव को अटेंड करने के लिए, लेकिन जो मोस्टली एक्नॉलेज्ड है दैट इज ध्यान, बिकॉज मेडिटेशन इज अ फूड फॉर साउल। और मेडिटेशन जनरली हमारा कंसेप्ट, हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं मेडिटेशन, देन वी ऑलवेज थिंक कि ये बड़ा एक साधु टाइप से बैठना है, पर्टिकुलर टाइप से बैठना है, और वो उस लेवल तक जाना चाहिए जहां पे जीरो थॉट हो। लेकिन basically that is okay for very highly spiritual people who have attained that enlightenment, लेकिन for common folks एक सहज ध्यान करके दिया हुआ है। एक सहज ध्यान करके एक विधि है बेसिकली। सहज ध्यान का मतलब है कि in normal life situation you don't have to sit formally and chant and do zero thought wala meditation. You just have to watch the life, watch the oscillations of mind. That is called a सहज ध्यान। आर्ट ऑफ लिविंग में एक सहज ध्यान की एक छोटा कोर्स भी होता है उसमें, which actually teaches us कि आप बैलेंस तरीके से साक्षी भाव से देखो उसको। whatever thoughts you are coming in your mind, you go just have a look on those thoughts and don't judge those thoughts कि क्या ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है। सही गलत के चक्कर में हम जब जजमेंटल होते रहते हैं पूरे लाइफ में, वहीं पे एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो मैं जो बता रहा था कि वो मेडिटेशन या ध्यान यही एक मेंटल हेल्थ को मेंटेन बरकरार रखने का, एक बैलेंस रखने का एक तरीका है एक्चुअली, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का जो सिचुएशन है उसके साथ एक बैलेंस या हार्मनी रखता है। आप जैसे ध्यान करना है, ध्यान करना नहीं होता है, इट हैपेंस बेसिकली। यू जस्ट हैव टू सिट एंड बी क्वाइट इन अ डे। when you meditate, just think of the three tenets. Three tenets are what? ध्यान के तीन tenets क्या है? मन ये कहते हैं उसको big points. It is called I am nothing basically. आपका खुद का आइडेंटिटी भूल जाओ, डिसॉल्व द आइडेंटिटी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप ईगो या किस जैसे कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं पर्टिकुलर इसका ये औधा लेके या ये लेके चले, वो आइडेंटिटी अपना भूल जाए कि मैं कौन हूँ, देन आई डू नथिंग।
हम ध्यान करते नहीं है, बेसिकली ध्यान होता है, सो लेट इट हैपन, जैसे होता है। सो इट शुड बी एफर्टलेस। ध्यान होना चाहिए। ध्यान हम जनरली करते हैं, कोशिश जो करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि फिर ध्यान नहीं होता उससे। उससे हम कुछ करने की कोशिश रखते हैं तो वो होता नहीं है। एंड लास्ट इज आई वांट नथिंग। उससे कुछ डिजायर नहीं रखो कि ध्यान से मुझे ये प्राप्त होगा, या जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, माँ फलेषु कदाचन, जो सभी चीजों की जड़ है। बिकॉज हम हर चीज का इच्छित फल चाहते हैं। व्हाट बुद्धा टेल्स अस इज द डिजायर फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कि हम कुछ कृति करते हैं, उसका ये पर्टिकुलर रिजल्ट होना चाहिए। हम ऐसी बातें ऐसा सोचते हैं बेसिकली। जो बुद्धा कहता है कि क्रिया या कर्म ही अपने हाथ में है, उसका रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, वही एक्चुअली माँ फलेषु कदाचन का अर्थ है। और ध्यान पे भी वही लागू होता है। ध्यान का हम रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। ध्यान इज जस्ट बी योरसेल्फ, एंड इट इज नॉट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, इट्स एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू दैट। हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं है ध्यान में बेसिकली। just have to be present and watch yourself, basically watch through, start watching yourself through body। अपनी सांसों को ध्यान देके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एंड जजमेंटल नहीं होना है, दैट इज व्हाट आई आल्सो प्रीवियसली स्पोक। जैसे फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नेसेसरी, मेंटल एक्सरसाइज लाइक ध्यान और वट एवर यू डू, बहुत सारे अभी इसके अलग अलग जरिए हैं, अलग अलग जरिए हैं अपने मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के। तो इन नटसेल व्हाट आई सजेस्ट कि आप भी कोई अपना चूज करें, उसको फॉलो करें, अपने अपने इवॉल्व करने की कोशिश करें। बेसिकली हम अपनी प्रेरणा हम खुद है। कौन सा मार्ग अपने को हमको खुद को अच्छा लगना और अच्छा महसूस होना, उसको प्रैक्टिस करने के बाद वो अपना अपना चॉइस है। जैसे आई डू आर्ट ऑफ मेडिटेशन का सुदर्शन क्रिया करता हूं मैं। देन सुदर्शन क्रिया इन्वॉल्व्स प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक एंड फॉलोड बाय अ ध्यान। सिमिलरली ओशो के अपने अलग अलग ध्यान हैं, ब्रह्म कुमारी हैं। तो उसे actually that is what we need to do in day to day life to maintain our mental health। ओशो का मैं एक छोटी सी पोएम पढ़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। Go ahead। Yeah, it's a small poem actually। Osho used to read in all his discourses। जब ध्यान, ओशो का सभी जो एम्फोसिस था वो ध्यान पे था। मतलब इट्स सेक्युलर टाइप ऑफ थिंग, नहीं कि आप ये नहीं कि आप कोई ज्यादा बवंडर टाइप से ये करो। ही वाज सेइंग कि सिंपल ध्यान इज द की ऑफ लाइफ। एक वो कहते थे, ओशो की एक कविता है, वो पढ़ता हूँ जस्ट, इट विल दिस इज अ टाइम आई शुड रीड इट। उसका नाम है एक प्रयोग। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो, 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो, शुरू शुरू में उदासी लगेगी, लगने देना। पुराना अभ्यास है, शुरू शुरू में परेशानी लगेगी, लगने देना। लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ। कुछ न करो, कुछ न गुनो, कुछ न करो, कुछ न गुनो, न माला फेरो, न मंत्र जपो, न प्रार्थना करो, कुछ भी न करो, चुपचाप। हाँ, फिर भी विचार चलेंगे, चलने दो। देखते रहना निरपेक्ष भाव से, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है, कि आकाश में उड़ती बदलियों को देखता है। निष्प्रयोजन देखते रहना, तटस्थ देखते रहना, बिना किसी सभी लगाव के, बिना निर्णय के, न अच्छा न बुरा, न अच्छा न बुरा, चुपचाप देखते रहना। गुजरने देना विचारों को, आए तो आए, न आए तो न आए। न उत्सुकता लेना आने में,
न उत्सुकता लेना आने में, न उत्सुकता लेना जाने में। और तब धीरे धीरे एक दिन वह घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे, सन्नाटा रह जाएगा। सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोया रोया कब जाएगा, क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतर अवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे। यह गहरा झटका लगेगा। तुम्हारा संबंध टूटने से लगा संसार से, तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़ भाड़ से, तुम संबंधों के पार उठने लगे। झटका तो भारी लगेगा, जैसे हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफा पृथ्वी से, तो जोर का झटका लगेगा। ऐसा ही झटका लगेगा। घबराना मत। एक बार पंख खुल गए आकाश में, एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव है, अपूर्व आनंद है। फिर एकांत, कभी दुख न देना। एकांत तो क्या, फिर भीड़ भी दुख न देगी, क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है। जिसको भीतर सधने की कला आ गई, वह बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है। दुकान पर बैठे बैठे, काम करते करते, और भीतर धुन बजती रहेगी निस्बासर रात दिन। नींद में भी उसकी धुन बजती। कर्नल साहब, अगर एक आप सभी इजाजत दे तो एक 10 मिनट का ध्यान करें। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैं ऑडियो चलाता हूँ। एक 10 मिनट का ध्यान है, श्री श्री रविशंकर जी का एक ध्यान है, तो हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। First, let us shake our hands. Shake our hands, and then let's keep our hands on our lap, however you feel comfortable. And let's close our eyes. आंखें बंद कर लें. रीढ़ की हड्डी सीधा रहे. Let's keep our spine erect and body relaxed. शरीर को ढीला छोड़ दें. We came into this planet weighing just 4 kilos or 5 kilos. Recollect or remember the weight of your body. It is 60 kilos, 70 kilos, whatever that is. Place your weight on the chair or on the floor you are sitting right at this point. Let's take a deep breath in, hold the breath and let go. Honor your own body. Your body, the precious gift to you from nature. Become aware of your whole body. Skins, tissues, muscles, blood vessels, bones, and all the internal organs. Your body
is a precious gift to you. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। अपने ही शरीर को मन ही मन आप सम्मान करें। Now let us come to the second dimension, your breath. It is our breath that is keeping our body alive. Your body is alive because of your breath. Take a deep breath in and let go. Incoming breath energizes the body and outgoing breath brings relaxation. This is happening all the time. Let us honor our own breath. अपने ही सांस पर आप गौर करें। आपका सांस भीतर बाहर आ जा रही है। Become aware of the air all around you. Like fish in the water, we are in air. Relax more and more. Let's take our attention to the top of the head. And become aware of the empty space above our head.
आई होप आपको सबको अच्छा लगा हो. इट वॉज 10 minutes मेडिटेशन बाय श्री श्री रविशंकर जी, जिनको गुरुजी कहते हैं. बहुत अच्छा लगा राजन जी, जी. बहुत अच्छा लगा. और आपका आपका ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है, इसको पहली बार हमने देखा. इतने दिन से हम जुड़े हुए हैं, बट आई वाज नॉट नोइंग. यू आर सो अमेजिंग, ग्रेट. I was not actually well prepared, and so my whole lecture was not that articulate. I can understand. जो भी है बहुत अच्छा है, और बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग. और आपने बहुत अच्छे से चीजों को रखा. अभी कुछ लोग शायद क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो आई जी. एम रिक्वेस्टिंग रोटेरियन संजय मर्चेंट टू मॉडरेट. ओवर टू संजय जी. Yeah, Colonel sir, thank you very much. Anybody has any questions? Yeah, Anuradha, Umesh. Can I ask a question? Yes, Yes, please, ma'am. Yeah. See, I have been hearing about Sri Ravi Shankar. I also have read and heard a lot about the benefits of meditation and art of living. Yes, But ma'am. a common man like me, or probably most of the people, find it extremely hard to change our thinking pattern and I would say bring a change in the personality, so Yeah. I mean, I would say, how do we make it practically possible to achieve this? It's very nice to hear. It's very nice to feel that, oh, tomorrow I can become a changed person. But I find it extremely hard and absolutely undoable. So what is your advice for people like me who can't change? Be the change, ma'am. Ma'am. Yeah, So tell me. one has to be the change itself. It's a long process. धीरे धीरे practice करने से होता है basically. Nobody can change overnight. And one has to find our ways to inspire ourselves. एक किसी का मार्ग पकड़ के हम नहीं कर सकते उसको. अपना मार्ग खुद ढूंढना होगा, अपनी ज्योति खुद को बनना होगा. Basically we have to start implementing small things. छोटा छोटा चीजें, जैसे कि आप एक एग्जांपल अभी एकार्ट टोले, जिनका मैंने अभी बात करा, हु इज ए स्पिरिचुअल टीचर. इनकी एक बुक है पावर ऑफ नाउ, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. मतलब एवरीबॉडी शुड रीड एक्चुअली वंस. इट्स अ स्मॉल बुक, पावर ऑफ नाउ. वो ये कहते हैं कि हम जनरली लाइफ अपने 70% वर्चुअल लाइफ में जीते रहते हैं. यू आर नॉट इनटू द लाइफ. बेसिकली हम प्रेजेंट में नहीं होते. जैसे हम सुन रहे हैं तो हम सुन नहीं होते. वी आर पॉन्डरिंग ऑन समथिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन. जैसे हम खाते रहते, खान पे ध्यान नहीं है अपना. वी आर थिंकिंग समथिंग. तो हम दोनों जगह से हाथ धो बैठे हैं ना. हमारा उस सिचुएशन पे कंट्रोल है. जो हम सोच रहे हैं बाहर खाने से परे, और जो खा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है अपना. सो दैट इज व्हाट ध्यान नहीं है का मतलब क्या है कि ध्यान इज लुक व्हाट यू आर डूइंग. इट इज कॉल्ड ध्यान. अपने जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दो. इट्स नॉट अ फॉर्मल टाइप ऑफ ध्यान. आप छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान देना शुरू करें, जैसे खुद का जो भी एक्टिविटी है, ब्रश करे तो ब्रश करने के ऊपर ध्यान दे, खाना खा रहे तो खाने के ऊपर ध्यान दे. अगर किसी को लिसन करे, यू आर लिसनिंग टू समबडी. बट मेनी अ टाइम्स जो दुनिया में सब द वर्ल्ड इज लैकिंग द थिंग दैट वी आर नॉट लिसनिंग. आज की सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल नीड है लिसनिंग. तो हमारा वो लिसनिंग पे ध्यान नहीं होता है. वी आर पॉन्डरिंग अपॉन समथिंग अदर. ये छोटी छोटी जो लाइफ सिचुएशन है, खाना हो, पीना हो, बात करना हो, प्यार करना हो, जो भी है, उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए. एंड दैट इज अ ध्यान. वन डजंट हैव टू सिट एंड चेंज. बेसिकली वो चेंज अपने आप आएगा. आगे चल के यू बिकम द चेंज. मतलब क्या होता है, यू योरसेल्फ इज अ चेंज. दिस थिंग ओवरनाइट नहीं होता है. जैसे कि यू डोंट हैव टू बी ध्यानी पर्सन थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द लाइफ. ये सिचुएशन आएगी ही. ये जैसे दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां चलती रहती है, उसमें गैप होता है. उस गैप पे ध्यान देना है अपने लाइफ में. सुख आता है, दुख आता है, पीड़ा आती है, लेकिन हम उसको ज्यादा उसके ऊपर जजमेंटल ना होके
प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान दे तो दैट इज इटसेल्फ इज अ ध्यान। मतलब हम जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दे, इट इज ध्यान। और वो जैसे करते हैं इट बिकम्स हैबिट। आज हम अगर 15 मिनट कर लिए, कल 30 मिनट कर लिए, ऐसे करते करते हम वो प्रैक्टिस आती जाएगी कि हम पूरा उसके ऊपर ध्यानस्थ रहे। एक वर्ड है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा इज क्या कि यू आर कॉन्शियस अबाउट समथिंग, एंड स्थित इज व्हाट कि व्हाटएवर इज द सिचुएशन, स्थिति, स्थिति पे अगर आप प्रज्ञ हो, स्थिति के ऊपर अगर इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर इनटू एंड व्हाट यू आर डूइंग, तो वो दैट इटसेल्फ इज अ ध्यान। जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो आपके मेरे शब्द और आपके कान एक एक लेवल पे है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज हार्मनी एंड दैट इज ध्यान। आई एम स्पीकिंग Okay. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू आर लिसनिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर ईयर्स, इट इज गोइंग टू योर हार्ट, इज अ ध्यान। ध्यान at your level and that ध्यान at my level. I think you explained very simply. I particularly Sthita Prajna, what you say is Yeah, ma'am. so correct. And I have seen people in the great inconveniences, stress in life, but still Sthita Prajna. I mean, Yes, ma'am. hats off, people are achieving these levels, and I think I will follow your advice now. Thank you so Yes, much. yes. It's very, Yes, very yes, sweet ma'am. of you. मैम ज्यादा लेवल की जरूरत नहीं है, one has to be grounded only। कि आप ध्यान रखिए Okay. अपने ऊपर और ज्यादा आगे पीछे नहीं जाए पास्ट और प्रेजेंट में। एंड इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज बेसिकली। जो जैसे हम डेली व्हेन वी स्टार्ट हम टैप शुरू करते हैं ब्रश के लिए, एक सिंपल मॉर्निंग की विधि होती है। यू लिसन टू द साउंड ऑफ द टैप, दैट इज ध्यान, बिकॉज आपका ध्यान उस पानी की आवाज पे है। अच्छा, आप ब्रश कर okay, रहे हैं तो आपका ध्यान उस ब्रश पे है। इट इज ध्यान। ध्यान इज नॉट ए फॉर्मल थिंग। हम ध्यान का मतलब बैठ गए ये शॉल पहन के ये होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ 24 घंटे की है, आपको सिर्फ ट्रेन करने के लिए एक 10 मिनट बैठना है डे टाइम में। तो अगर आप 10 मिनट बैठ लिए तो दिन भर में आपका वो एनर्जी इट कंटिन्यूज विथ यू एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो उसके ऊपर आपका फिर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स हाई बेसिकली। very nice, very nice, very nice advice. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Right, Thank you. Rajendra ji, thank you very much. Colonel sir, back to you because थैंक यू, time is थैंक up यू now. वेरी मच। नीरू जी, आपका ये फोटे है, आपका एरिया है, आप कुछ बात करना चाहेंगे नीरू जी? जी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना कहना चाहूंगी क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो गूंगे का गुड़ है और Yes, yes. उसको Good. समझाना बड़ा मुश्किल है, और आपने जैसा समझाया है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और सब इंस्पायर होंगे। बट विपश्यना एक ऐसी चीज है जिसको मैं कहती हूँ कि बहुत इंटेंस ऑपरेशन है वो माइंड का, हैबिट्स का, अपनी लाइफ का, जो कि पूरा का पूरा चेंज कर देता है। और 10-15 बार, 15-20 बार विपश्यना करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम बच्चे हैं अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। सो अनुराधा ने जैसा पूछा कि कैसे सीखे, अनुराधा ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन रास्ते को प्यार करने लगो तो अपने आप सरल हो जाता है और वो अच्छा लगने लगता है। तो हमको किसी टारगेट पे नहीं पहुंचना है, हमको तो रास्ते से प्यार करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सब्जेक्ट, आई thoroughly enjoyed. Thank you, राजेंद्र ma'am. जी, Thank you. या Yeah. राजेंद्र जी, ये अपनी नीरू जी अभी जो बोल रहे थे, ये स्वयं में सर्टिफाइड योगा टीचर हैं और ये इनका एक अपना प्रज्ञा करके ग्रुप चल रहा है, जो कि हम रोटरी क्लब रिवर साइड और भी लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हजारों हजारों लोग जुड़ते हैं, संडे को इनका प्रोग्राम होता है। सो इनका भी एक ये आध्यात्मिक स्वरूप है, जो कि इसीलिए मैंने इनको कहा कि भाई आप तो सवाल जरूर पूछें, आप कुछ Yeah, समझ yeah. करें। That's great थैंक and यू nice to नीरू know जी, also. थैंक यू वेरी Well मच। said, madam. Well said. Yeah, Thank you so yeah. much. या सो अभी समय हो रहा है, फिर भी अगर कोई एक क्वेश्चन करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़े। चलो अब मैं एक प्लीज बात पूछना चाहूँ। जी जी। ध्यान का मतलब हम अल्टीमेटली ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि
एक ब्लैंक की स्थिति माइंड में जानी चाहिए और उस स्थिति में हमको पहुंचना है, वो अल्टीमेटली ध्यान करना है। तो ये करेक्ट है कि नहीं है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Yeah, that is actually the result or epitome of your practice of ध्यान basically. What I told कि जैसे सामान्य आदमी के लिए, जैसे अनुराधा मैडम पूछ रहे थे कि सामान्य आदमी के लिए क्या है, तो that is called a सहज ज्ञान, सहज ध्यान, कि आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू करो. When you attain that particular level, जिसमें हो सकता है zero thought हो सकता है, but that is an what we call utopian type of thing. Utopian जो होता है कि that is absolute basically. वो आप ज्यादा देर रख नहीं सकते, कॉमन आदमी के लिए नहीं है. दैट इज ट्रू कि जीरो थॉट होना चाहिए, वो अटेनमेंट होना चाहिए, और वो धीरे धीरे आएगा. सो यू वन हैज टू स्टार्ट. वो अल्टीमेटली आप लेवल पे पहुंचते ही है. दैट इज द एम बेसिकली, दैट शुड बी द एम. लेकिन उतना नहीं पहुंचे तो भी ध्यान है. अंडरस्टूड. तो जैसा नीरू जी ने कहा कि रास्ते से प्यार करना है, हम अल्टीमेट पे पहुंच जाएंगे. Exactly. Thank you. Exactly. Thank you, sir. Thank you very much. So nice of you. And not taking much time. Now I will invite Rotary Ruchin Gupta, immediate past president, for extending formal vote of thanks. So over to Ruchin ji. Thank you, Mr. President, for giving me the opportunity. And Rajendra ji, it was indeed a very good session. And the topic is excellent, considering the fact that in past 1 year, I've seen that depression doesn't see like it does not happen to rich people or anyone. Lot of people are going through depression. Even students I've seen, life pressures are there, financial pressures. And I believe this is a topic that can help literally anyone. Yeah, each and every person can benefit from it. And some of the points that you made about like dhyan and like how mental imbalance happens due to lifestyle choices. So this is not like a very expensive way to fix it. I mean, Colonel Mishra, I'll definitely think we can use our club also and reach out to people to take them out of depression. Like there are so many going through depression in such a phase. And I personally want to thank you on behalf of the club. I can see that everyone was totally engrossed listening to you, and the dhyan at the end, like the practical thing that you took us through was like icing on the cake. So once again, thank you for sparing the time and coming and talking to us. It was really good. Thanks. Back to you, Colonel Mishra. Thank you very much. Thank you, Ruchin ji. Thought of the week is the very standard and very healthy tradition of Rotary Club Pune Riverside, which Rotary Club Pune Riverside is following since so many years. So for that, I would like to invite Rotarian Prerna Gaikwad, Secretary Rotary Club Pune Riverside, to share thought of the week. Prerna, over to you. Thank you, Colonel. So going on today's lines, what we achieve inwardly will change things for us outwardly. Thank you so much. Great. Thank you. You see, the cracking the joke or getting the tonic from the joke on every Wednesday we look forward, and we have the expert on that, our own past president and honorable member advisory board, Sandeep Bashji. So over to Sandeep ji. Good morning everybody. Good morning Colonel Sahab. Actually क्या है, जब हम बात करते हैं ना मेंटल इलनेस की, तो सीधा जो है एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, पागल खाना ही दिखाई पड़ता है. I know that is wrong. तो जब राजेंद्र जी ने ये बात स्टार्ट करी तो मेरे को एक बहुत पुराना लेकिन मेरा बहुत फेवरेट जोक याद आ गया. तो कुछ ऐसा है कि एक रात को बहुत जोर से बारिश हो रही थी और एक आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था अकेला. इतने में हिज बैड लक, गाड़ी पंचर हो गई.
खैर अब क्या करें, निकलना तो पड़ेगा बाहर, तो बारिश में निकला और उसने टायर खोला और उसके बाद स्टपनी उसमें लगाई। जब वो स्टपनी को बोल्ट करने के लिए गया तो उसने रियलाइज किया कि वो बोल्ट तो पानी में गुम हो गए, मिल नहीं रहे, क्योंकि पानी भर गया था। तो वो बोल्ट कहाँ चले गए पता नहीं लग रहा था। तो भी बहुत परेशान हो गया कि क्या करूं। तो उसने यहाँ वहां देखा तो देखा एक लाइट लगी हुई है और उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उसने बोला मे बी ही कैन हेल्प, मतलब उम्मीद तो नहीं थी, चलो ट्राई तो कर लेते हैं। तो उस आदमी के पास गया, बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, कुछ उपाय बताओ, कुछ हेल्प करो। तो उसने बोला कि बहुत सिंपल सी बात है, एक काम करो, आपके पास 4 चक्के हैं, सब में से एक एक निकाल लो, इसमें भी 3 बोर्ड लगा लो, घर तो चले जाओगे, बाकी कल देख लेना। बोला यार बात तो आपने बड़ी अच्छी करी है। फिर ऊपर देखा तो वहां लिखा हुआ था पागल खाना। तो बोला भाई ये पागल खाना और आप? बोला मैं यहाँ पे भर्ती हुआ हूँ। तो बोले लेकिन आप तो इतनी स्मार्ट बात करते हो। बोलते यार आप रियलाइज नहीं करते हो, मैं पागल हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। So thank you Sandeep bhai. We look forward for your joke every Wednesday, and Very appropriate. yeah. And before joining the meeting, I have one more announcement. The calendar of the month March has already been out. I will request all the Riversiders to kindly block your date and time. And next speaker is our own Rotarian charter member, founder, and honorable member of Rotary Club, Rotary Board, Rotarian Mukesh Malhotra. He will be having very interesting talk, and he has 2 topics. Kindly refer to the calendar, and that session will be totally interactive session. So I request you all to please join us on coming Wednesday, 10th at 8:30. So राजन जी, आपकी जो आज टॉक हुई है मिसप्राइजिंग रही है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, टोटली मिसप्राइजिंग, एंड आई एम टोटली स्पीचलेस। मैं आपका ये स्वरूप पहली बार देखा, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ हूँ, यू नो वेरी वेल। सो एक काम करते हैं, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, सोसाइटी ऑफ सिविल सर्विस के ग्रुप पे भी शेयर करने जा रहा हूँ, एंड आई विल टॉक टू द चो, भैया एक रखो, क्योंकि अच्छा रहेगा। अभी लोग थोड़े से स्ट्रेस में अभी भी हैं, तो सोसाइटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स पुणे को भी आपके टॉक की जरूरत है। Yes. We are benefited in advance, so thank you very much having you Thank you. today. It's a blessed day for us. I am privileged. Thank you so much. So stay healthy, happy, safe and blessed. Thank you. Yeah. Can I have your permission to end the meeting, please? Yeah. Thank you. May I take leave then? Yeah, please. Thank you everyone. Thank you. Best good of morning. luck. And yeah. Thank you. Yeah, Okay. yeah. Bye. Thank you. DG. Bye everyone. Bye, sir. Bye. Thank you very much.